Hi students, good morning. Satish Dwivedi for you guys. And yes, today I am ready to teach you about sentence. In my previous class, I taught you about sentence, what is sentence and parts of sentence. And today I will teach you how many types of sentences. Okay, dears, be careful. Generally, there are five types of sentences. Five types of sentences. The very first one, positive sentence, assertive sentence. Wait. This is the part of assertive. Assertive sentence or declarative. Declarative sentence. Assertive sentence or declarative sentence. And now these two have two types. First one, positive, and second one, negative. My dears, assertive or declarative sentence has two types. First one, positive sentence, and second one, negative sentence. Okay dears, now two. Interrogative sentence. Interrogative sentence. First, second, third. Imperative. Imperative sentence. Fourth one, exclamatory. Exclamatory sentence. And last one is optative. Optative sentence. Okay dears? My dears, once again I revise types of sentences, assertive or declarative sentence, and this one has positive or negative, two parts. And next one, interrogative sentences. Next one, imperative sentences. Next one, exclamatory sentences. And last one, optative sentences. Okay dears, after just now, I go for a brief. I am going to brief you over these in short, but later I will go to in explanative form. Assertive or declarative, the sentence that shows assertion or declaration about something factual. Something is their fact, any message, any confirmation, any statement, then those type of sentences are called as assertive or declarative. And two types of positive and negative. Interrogative. These sentences are asked questions. Means the sentences those asked questions are called as interrogative sentences. Imperative sentences. Imperative sentences means to give order and try to got order from something. Means to say order, request, suggestion, proposal. These are all type of statements fall under the imperative sentences. Exclamatory sentences. Feelings of hurt. Deep feelings of hurt. Or the sentences those show deep feelings of hurt are called exclamatory sentences. And last, optative. Optative. The word optative is derived from option, means wish of mind. The sentences those show wish of mind are called as optative sentences. So dear, let's once again in Hindi please.
असर्टिव और डिक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं बेटा, वो किसी कथन को, किसी तथ्य को, किसी फैक्ट को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जो किसी कथन या फैक्ट को शो करें वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव। असर्शन का मतलब होता है सहमति। सपोज वह जाता है, मैं आता हूँ, वे खेलते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, वह घर जा चुका है, मैं पढ़ चुका हूँ। या फिर डिक्लेरेटिव, बच्चे अपना काम कर चुके हैं, हम लोग अब खेल चुके हैं, हम लोग आने वाले हैं, हम लोग आएंगे, हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, वह घर जाता है। ये मतलब डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का उद्घोषणा करना, किसी फैक्ट के बारे में बताना कि ये काम हो रहा है। नेक्स्ट, अब इसके दो पार्ट है। पॉजिटिव, सपोज ही गोज, वह जाता है, पॉजिटिव। नेगेटिव, ही डजंट गो। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो नॉट, द सेंटेंसेस दोज आर कंटेनिंग द एडवर्ब नॉट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट आता है वो सब नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव। सपोज फॉर एग्जांपल, ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैजंट गो टू स्कूल। हैज गॉन पॉजिटिव, हैज नॉट, हैजंट नेगेटिव। Interrogative sentences. These sentences are asked with question. Suppose, where does he go? Do you play? Will he coming? Have they gone? Has he completed his work? So and so. तो ऐसे sentences इसमें WH टाइप भी आते हैं, तो बाद में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे उसको डियर्स। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आदेश दिया जाता है या लिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, सजेशन दिया जाता है, तो वो सब सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, हृदय की गहरी भावनाओं को व्यक्त करने वाले सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेशन मीन्स होता है कि डीप फीलिंग्स ऑफ हार्ट, हृदय की गहरी भावनाओं को, चाहे आइदर इट में बी जॉय और सैडनेस, हैप्पीनेस और सैडनेस, जो भी हो तो वो एक्सक्लेमेटरी में आता है। ओके डियर्स। और लास्ट ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ऑप्शन, विश, यानी दिमाग, मन से जुड़ी हुई जो इच्छाएं होती हैं। सपोज आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूं कि ईश्वर आपका भला करे, ईश्वर आपको खूब बरकत दे, आप जीवन में खूब फले फूले, आप अपने जीवन में खूब विकास करें। यानी हम यहाँ पे किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ विश भी, जस्ट थ्रू दीज सेंटेंसेस आई जस्ट गो टू विश माई विश ऑफ माई माइंड, दैट्स व्हाई दीज ऑल सेंटेंसेस विल फॉल अंडर द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके डियर्स। सो नाउ इट्स क्लियर कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके एक डिफिनेशन के साथ एग्जांपल पे आपको लेके चलता हूं। ओके डियर्स। पहला असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। ओके, डिक्लेरेटिव, द सेंटेंसेस दोज शो assertion or declaration, or the sentences those mentioned statements are called assertive or declarative. Once again, the sentences those express assertion, the sentence assertion, the main point assertion or declaration, सहमति, घोषणा, okay dears, for example, he goes to the Taj, ये पॉजिटिव इसका फॉर्म हो गया। और अगर इसको हम नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाएगा he doesn't go to the Taj, he doesn't go to the Taj. Okay dears, so I think it's clear to you all. The very important point is that
all assertive or declarative sentences take full stop in their end। यानी assertive sentence चाहे वो पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, उसके लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगना चाहिए। ओके, सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस these are two types। first one, simple or सिंपल इंट्रोगेटिव, इसको शॉर्ट में लिखेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव। सेकेंड विल बी WS type interrogative। Okay dears, simple interrogative and WS type interrogative। Simple interrogative are also called SR no type। SR no type। Now the definition for these, the sentences those ask question and in answer will use yes or no, then those sentences will be called as simple interrogative or yes or no type। Suppose if I ask do you play, अगर मैं पूछता हूं आपसे कि क्या तुम खेलते हो, आंसर विल बी yes or no। if you play then you will see that yes I play, and if you want then you will see no, if you don't then you will see not। that's why this statement is called as yes or no type interrogative sentences। यानी ऐसे स्टेटमेंट्स जिसका आंसर yes या no में हो। Does Sita go to school? Yes, she goes to school। No, she doesn't go to school। Do the children play in the field? Yes, they do। if not, no they don't। तो इस टाइप के सेंटेंसेस और इन सिंपल सेंस ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनके स्टार्टिंग में कोई हेल्पिंग वर्ब्स हो, डू, डज, डिड, हैज, हैव, वाज, वर, विल, शैल। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनकी स्टार्टिंग डू, डज, डिड, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल से स्टार्ट हो, तो उन सेंटेंसेस को yes or no टाइप और सिंपल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। अब WH टाइप, द सेंटेंसेस दोज स्टार्ट विद WH वर्ड्स। ऐसे सेंटेंसेस व्हेन डू यू प्ले। अब यहाँ पे डियर्स ध्यान देना कि व्हेन वर्ड आ गया, इसकी स्टार्टिंग WH से। WH उसको कहा जाता है, उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनकी स्टार्टिंग WH से हो, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, हुज, whom। तो इन सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स को WH वर्ड्स कहा जाता है और एक तरह से एडवर्ब का काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं। तो डियर्स याद रखिएगा कि अगर सिंपल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो तो इसका मतलब कि सिंपल इंट्रोगेटिव और yes or no टाइप। अगर WH वर्ड से स्टार्टिंग हो तो इसका मतलब कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल बी कॉल्ड ऑल दिस। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट all type, the both type of interrogative sentences take interrogative marks in the last। It's very important। यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में ये मार्क जरूर लगना चाहिए, इंट्रोगेटिव मार्क। ओके डियर्स, एंड नाउ थर्ड, imperative। Imperative sentences advise order। Suppose may I come in sir।
क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यस यू मे गो। प्लीज डू योर वर्क। वी शुड गो टू गार्डन। वी शुड गो टू गार्डन। Imperative. This sentence is ordering to someone. Oh, sorry. This sentence is asking, requesting for something. This sentence is as you may go, giving order to someone, and this is just a proposal. We should go to garden or suggestion. तो इस प्रकार के सेंटेंस है जिससे कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट हो, कोई ऑर्डर हो, कोई सजेशन हो, इस टाइप के सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं बेटा। और याद रखिएगा आप लोग कि इंपरेटिव सेंटेंसेस जरूरी नहीं है कि पूरे इतने लंबे ही हों, छोटे, अगर केवल वर्ब लिख दी जाती है तो भी इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। सपोज इफ आई राइट गो और यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है तो इट मींस कि ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस ऑफन हाइड देयर सब्जेक्ट एज यू। दिस विल बी यू गो। Suppose I say come here. To whom I am addressing? I am addressing to you. It means this will take in the starting. You come here. तो याद रखिए run. Suppose अगर मैं करता हूँ run और यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इसके पहले क्या छिपा हुआ है, you run. Okay dears? And now exclamatory. Exclamatory. I got ruined. अरे मैं बर्बाद हो गया। What a pity. कितने दुख की बात है। How sad. How sad. Very sorry. तो डियर ऐसे सेंटेंसेस जो हृदय की गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, डीप फीलिंग्स ऑफ द हार्ट। आई गॉट रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। व्हाट अ पिटी, हाउ सैड, कितने दुख की बात है। सॉरी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना डियर कि ऐसे सेंटेंसेस जो जिसका कोई स्टार्टिंग वर्ड या उनके बीच में कहीं या तो कॉमा का यूज किया गया हो या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक स्ट्रेट लाइन नीचे डॉट। हाउ सैड, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर ये साइन यूज किए गए हैं किसी भी सेंटेंस में तो इसका मतलब 100% वह कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ओके डियर्स, और लास्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, विश ऑफ माइंड। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया इन स्टार्टिंग आई थॉट यू डियर दैट दो सेंटेंसेस हु विश ऑफ माइंड, जो हृदय की मन की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मे गॉड सेव आवर लाइफ, मे गॉड सेव आवर लाइफ। याद रखना डियर्स, इंपरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी क्या लेते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मे गॉड सेव आवर लाइफ,
live long our PM, हमारे PM की उम्र क्या हो, लंबी हो। तो इस तरह से मे यू प्रॉस्परस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में खूब फले फूले। ठीक है, तो इस टाइप के अगर सेंटेंसेज है जिससे मन की इच्छाएं व्यक्त हो तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह से डियर्स नाउ द टॉपिक अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इज फिनिश एंड आई होप दैट ऑल related this topic points are clear in your mind and now you are able to understand about the parts, about the kinds of sentences. Okay dears, I hope this topic will be so helpful to you all guys in your journey towards English language. Okay dears, wish you all the best.